हाय, दिस इज रोहित। इससे पहले लेक्चर में काइनेमेटिक्स के पार्ट 1 में हमने यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी that we can say that body, if body velocity is changing, that body is in acceleration. If the body of the velocity of a body is changing continuously, then we can say that this body is in acceleration. Like if I can say the rate of change of velocity means change of velocity v final minus v initial upon rate means delta t. The rate is what came from delta t. ठीक है, तो this is the formula of acceleration. अब here velocity, it is a vector quantity. When I will divide this vector quantity to some scalar, then this quantity also be vector quantity. So I can say acceleration is a vector quantity. And acceleration is a vector quantity and magnitude we can get from here. So what will be the direction of this acceleration? So direction of acceleration will be along the direction of change in velocity vector. Let us take an example. Suppose here on road, this is a road, on this a car is moving. At this point a car is moving with velocity 20 meter per second. But at this point car is moving with 10 meter या 30 meter per second. So the change 30 minus 20, the change is 10 meter per second and positive 10 meter per second. That means acceleration direction is towards this. If I say 20 meter per second at this point and 10 meter per second at this point, then change is 10 minus 20, that means minus 10. In this case I will say the direction is towards this, opposite of this velocity. So this is how we can find the acceleration of a body and the direction also. And we know acceleration is a vector quantity. ठीक है, तो इतनी सी बात है किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। अब जैसे हमने प्रीवियसली क्या किया था कि वेलोसिटी को हमने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो हम तीनों ही के मतलब वन बाय वन समझते हैं कि क्या होते हैं। अब एक्सेलरेशन को तीन तरीके से आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और चौथा है इंस्टेंटेनियस। अब समझते हैं इसके बारे में कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द होल मोशन शुड बी कांस्टेंट, उसकी एक ही वैल्यू रहनी चाहिए। इन नॉन यूनिफॉर्म व्हाट इज, एंड हियर आल्सो डायरेक्शन आल्सो शुड बी कांस्टेंट, डायरेक्शन आल्सो same
towards whole motion. The acceleration of direction should be same. Now in this non-uniform motion, here magnitude should not be constant. Direction also should not be constant. Should not be same. This is how we can define uniform, non-uniform. तो यूनिफॉर्म को मैं कह सकता हूँ द एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे और एक ही डायरेक्शन में रहे, तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोलूंगा यूनिफॉर्म। और व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है और उसकी डायरेक्शन भी सेम नहीं है, कभी एक्सेलरेशन होता है एक्स एक्सिस पर, कभी होता है वाई एक्सिस पर, कभी जेड एक्सिस पर, तो इस तरीके की मोशन को क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज। एवरेज को मैं बोलूंगा, एवरेज को हम बोलते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन एंड हियर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मींस कि सपोज इन अ सर्कल a particle is moving. In a circle, particle is moving continuously. At this point, what will be the acceleration? That acceleration will be called as instantaneous acceleration. At this point, what will be the acceleration? That will be instantaneous acceleration. From here, what? The instantaneous. Instant means a particular time. एक फिक्स टाइम है, बड़ा ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, इन दैट स्मॉल टाइम इंटरवल व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, मतलब एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम समझ चुके हैं कि वेलोसिटी के बारे में, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालें। अब हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, distance upon time, displacement upon time. This is velocity. V is equal to ds over dt, where dt tends to 0, small time interval which is tends to 0 but not equal to 0. ठीक है, अब this situation I can write it as ds over dt. अब ds over dt का क्या मतलब है, the differentiation of displacement function with respect to time। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आते वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें, अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन समझाया हुआ है। इस तरीके से हम निकालेंगे क्या, v इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ये तो बात होगी। ऐसे ही अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ds वही यहाँ पे s का क्या मतलब है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन dt। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम किसी भी पार्टिकल की जो मोशन में है उसकी स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है, सपोज इन क्वेश्चन particle is moving in along a straight line, the function of it change in position, the function of change in position with respect to time is given as tq plus 3t square plus 2। टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, v इंस्टेंटेनियस निकालनी है, क्या होगी, at t is equal to 2 सेकेंड, t is equal to 2 सेकेंड। तो हमें पता है v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये dx over dt,
द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा यहाँ पर dx का फंक्शन गिवन है पी क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 d ओवर dt। इसका डिफरेंशिएट करना है वो, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये तो क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, बट ही इज आस्किंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds, what will be the instantaneous velocity? So put here t is equal to 2 seconds. So 3 into 2 square, that is 4, plus 6 into 2 plus 0, that is equal to 12 plus 12, 24. 24 meter per second will be the instant speed when 24 meter per second will be the speed at t is equal to 2 second of the motion which is the position changing with time as this function. This is how the question will come from instantaneous speed, है ना। अब देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। ये तो बात रही इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो उसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे रखा होगा, उसे डिफरेंशिएट करें तो मैकेनिकल क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है। अब देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये तो थी हमारी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की। अब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t वाला एक्सेलरेशन हो गया, तो अगर मुझे इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे ये डेल्टा t बहुत छोटा करना पड़ेगा। एक इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एक लगभग 0, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेयर डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं dv ओवर dt। यहां पर d यही रिप्रेजेंट करता है, दे आर वेरी स्मॉल, v इज वेरी स्मॉल एंड d इज वेरी स्मॉल, ठीक है। यहां पर d रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेरी स्मॉल। अब इंस्टेंटेनियस के लिए dv ओवर dt, इसे दिमाग में, ठीक है, dv ओवर dt। अब हमने अभी पहले देखा था कि v बराबर क्या था, dx ओवर dt। मतलब when I differentiate x means displacement, when I will differentiate displacement vector with respect to time, that will give velocity. When I will differentiate velocity with respect to time, that will give acceleration. तो यहां मैं कह सकता हूं acceleration will be double differentiation of position function with respect to time. तो डबल डिफरेंशिएशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। This is the relation of acceleration with velocity and position, ठीक है। तो यहां से हम अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं सीधा, साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने हैं कॉपी पेन पे। अब ये साइड में लिख देता हूं रिमेंबर के लिए। एक्सेलरेशन विल बी dv ओवर dt और dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, और v बराबर क्या होता है, dx ओवर dt। द मेन फॉर्मूला ऑफ टुडेज लेक्चर। एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन द पोजीशन फंक्शन गिवन एज
5t² प्लस 2t। तो सिंपल फंक्शन लेते हैं। अब इस फंक्शन को मुझे इस फंक्शन से क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। व्हाट आई हैव टू फाइंड, a इंस्टेंटेनियस और v इंस्टेंटेनियस क्या होंगे। तो वही सेम फंक्शन निकालेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे dx ओवर dt। v इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए dx ओवर dt करते हमारा क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म्स को, तो 10t प्लस 2, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करने का ये आया। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 1 सेकेंड। तो जैसे t की वैल्यू 1 सेकेंड डालेंगे तो 10 into 1 plus 2 that will be 12 meter per second will be the speed at t is equal to 1 second. So this is how we can find the instantaneous velocity. अब दूसरा पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। दूसरा पार्ट क्या है कि फाइंड द a इंस्टेंटेनियस। a इंस्टेंटेनियस के लिए हमने क्या बताया था कि डिफरेंशिएट द पोजीशन वेक्टर 2 टाइम्स, डबल डिफरेंशिएशन किया आपको। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे हमारा क्या था, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या था, 10t प्लस 2। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो 10 कांस्टेंट पे क्या हो जाएगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और फाइंड आउट करते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक छोटा सा ग्राफ बना लें अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा फिगर कि पोजीशन फंक्शन गिवन है, स्पीड गिवन है, स्पीड और एक्सेलरेशन, ये दो है, 3 चीजें हैं, इस पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हमें पोजीशन फंक्शन से एक्सेलरेशन निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें स्पीड से एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हमें पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालना है तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार स्पीड आएगी फिर उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। स्पीड में क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आप ये ना समझे कि यहाँ स्पीड से एक्सेलरेशन आ रहा है क्योंकि मैं ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो हाउ इट कैन केम। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड देखेंगे ना कि उसकी डायरेक्शन। यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करेंगे एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पीड से भी हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें, ना कि डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन से स्पीड देखनी है तो इससे मैं कर दूंगा फिर इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन फंक्शन को इंटीग्रेट करना तो मुझे स्पीड मिलेगी, और स्पीड के फंक्शन में इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पोल पोजीशन मिल जाएगी। तो इस तरीके की ये साइकिल चेन बनती है। व्हेन आई विल डिफरेंशिएट पोजीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, देन आई विल गेट वेलोसिटी विद स्पीड, एंड व्हेन आई विल डिफरेंशिएट स्पीड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, देन आई विल गेट एक्सेलरेशन टर्म। If I want speed again from acceleration function, then I have to integrate it. Then again I will integrate. Then I will get position function. So this is how we can find the instantaneous speed, velocity
from a position function. तो hope you all have cleared this. अब यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया है. अभी यहाँ देखेंगे कि मोशन ऑफ इक्वेशन क्या है, क्योंकि हमने मोशन ऑफ इक्वेशन 9th में भी पढ़ रखी है, तो 11th में भी हम देखेंगे उन्हें कि मोशन ऑफ इक्वेशन कैसे आप डिफाइन करते हैं या फिर उनका प्रूफ क्या है. तो मोशन ऑफ इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है. पहली जो कंडीशन है वो ये है, पहली और आखिरी कंडीशन यही है कि एक्सेलरेशन should be constant. That is the condition. Only one condition is given for a equation to apply the equation of motion. If acceleration should be constant, only when we can apply the motion of equation in the motion. तो पहली मोशन ऑफ इक्वेशन क्या है जो कि हमने पढ़ रखी है, v बराबर u प्लस at. दूसरी क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a. These are the three equations of motion to explain the motion of a particle. How we can explain the motion of particle? These are the three equations. ठीक है, काइनेमेटिक्स में यही तीन इक्वेशन यूज होती हैं हर क्वेश्चन में. तो पहले प्रूफ करते हैं पहले फर्स्ट वाली को. अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt. और अगर मैं इस dt टर्म को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, a dt is equal to dv. If I will integrate both sides, limit is u to t. यहां पर लिमिट a dt. ठीक है, तो लिमिट वही टाइम 0 to t. ठीक है, टाइम की लिमिट क्या है ये, और यहाँ पर u to v. यहाँ पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी. तो लिमिट हम लोअर टू हायर पुट करते हैं. ये हायर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है. ऐसे यहाँ पे टाइम हायर लिमिट है और टाइम मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है. तो 0 लोअर लिमिट है. ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करता हूं. तो इंटीग्रेट करने पर a dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस a इंटू 0 पुट करो तो 0. तो ये टर्म क्या होगी, 0. तो इसे मैं हटा देता हूं. ठीक है, अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v. लिमिट क्या है हमारी, u टू v. अपर लिमिट लोअर लिमिट. अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पुट करो v माइनस u. तो at इज इक्वल टू v माइनस u. So I can write it as v is equal to u plus at. This is the proof of first equation by integration method. ठीक है, तो यहां से हम पहले इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं. अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में कि सेकंड इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. अब सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. v बराबर क्या होता है, dx ओवर dt. ठीक है, अब dt को मैं जब लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v dt. और हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी हैव फाइंड आउट, v इज इक्वल टू u प्लस at. तो इस u प्लस at को मैं इस v की जगह लिख सकता हूं, u प्लस at dt is equal to dx. I will integrate both sides.
ठीक है। तो फ्रॉम 0 to x, 0 to x लिमिट पुट करो और यहां पर लिमिट पुट करो इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt, वही 0 to a, एक्सेलरेशन मिनिमम कैन बी 0, मैक्सिमम कैन बी a, और यहाँ पर u क्या शो कर रहा है, ये वेलोसिटी, तो मतलब स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है उसकी, ठीक है। तो ये u और v, u इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, या v क्या है, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। तो दिस इज हाउ dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। अब से इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, लिमिट इज 0 to x, so that will be x। अब यहां पर लिमिट क्या है, u dt, तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज u to v, लिमिट इज u to, यहां पे लिमिट लगाते हैं 0 to t, टाइम की लिमिट है, लिमिट इज 0 to t, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 0 to a t dt, तो dt का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में फिर क्या हो जाता है, t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to t। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसे मैं ऐसे शो कर देता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इनटू सेकेंड इक्वेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए कि इनके प्रूफ कैसे हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का, फिर सेकंड इक्वेशन का। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ हम कैसे करते हैं। अब हमें पता है कि फॉर थर्ड इक्वेशन के लिए क्या होती है, थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, s इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सेलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। As we know, a is equal to dv over dx, ठीक है। dv over dx और v is equal to dx over dt, a is equal to dv over dt, ठीक है। अब इस t को अगर मैं लेके जाऊं और v को बदल जाऊं तो t dt is equal to क्या होता है, dx over v, dt is equal to dx over v। अब मैं इस t को यहां रख दूं dt को, तो क्या हो जाएगा, dv over dt का लिख डालूंगा मैं dx अपॉन v, इस v को मैं ऊपर लेके बढ़ जाएगा सॉल्व करने पर, तो v dv over dx, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आल्सो कैन बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन v dv over dx, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां तो बात ठीक थी, अब इसे थोड़ा सा इंटीग्रेट कराएंगे ना, a इक्वल टू इस dx को v dv over dx, इस dx टर्म को मैं ले लिया हूं तो क्या हो जाएगी, a dx इज इक्वल टू v dv। यहां तक सबको समझ आया। अब थोड़ा साइड में रखते हैं, अब a dx इज इक्वल टू v dv है, इसे लिमिट पुट करके
इंटीग्रेशन करते हैं ए डी एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स। पोजीशन मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 पोजीशन हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? x हो सकती है। ठीक है, अब v dv इंटीग्रेट करो। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल हमारी क्या होती है? v मानते हैं। इनिशियल आल्सो कैन बी 0, यहां भी 0 टू v ले सकते हैं, लेकिन हमारे इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम u और यहां पर v। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन a dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ax फ्रॉम लिमिट क्या है इसकी? 0 टू x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v dv, तो v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन u टू v। तो ax फ्रॉम 0 टू है ना, तो ax इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करने पे क्या होगा? ax इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। इसे इधर लेके तो 2ax इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। x को मैं लिख सकता हूँ s, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। Was x here? What was that x? x was the position function। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तीनों ही मोशन ऑफ इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, एक पीडीएफ में बनाकर आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। और अगर उनमें कोई डाउट आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दैट इज 9634698327 इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में ऐड हो सकते हैं। अब इसमें ऐड कैसे होना है? ऐड करने के लिए आपको अपना नाम, क्लास और एड्रेस, ये तीनों ही आपको इस नंबर पे मैसेज करने हैं और आपको ये रिक्वेस्ट करनी है, सर वी वांट टू बी ऐड इन योर स्कूल ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको सारे जितने क्वेश्चन हैं जो आपको इसके ऊपर बनते हैं, उनके डाउट और कई सारी चीजें जो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, वी कैन शेयर विद यू एट व्हाट्सएप ग्रुप देयर ऑन अ फेस टू फेस लाइव सेशन। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? इमोशन ऑफ इक्वेशन की। तो इसके एक दो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक दो एग्जांपल सिंपल से एग्जांपल, आपको लेवल के एग्जांपल सीपीयू में मिल जाएंगे। ठीक है, नाइन 9634698327। अब क्वेश्चन गिवन है, a car is moving with, ठीक है, तो इसके लिए हमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? a car moving with acceleration। ऑब्वियसली बात है कि कार की स्पीड बढ़ती आ रही है बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज देयर, तो कार मूव करेगी रोड पे। व्हाट एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बढ़ती आ रही स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेट है। इफ इनिशियल स्पीड इज 0, उसकी u की वैल्यू क्या है? 0 है, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड? इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो हमारे पास यहाँ पर a दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t दे रखा है 3 सेकंड, u दे रखा है 0 और मैं निकालना क्या है? v। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये चारों ही टर्म्स हो और एक टर्म मिसेंगे हमारे पास। तो ऐसी इक्वेशन है पहली, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर u क्या है? इनिशियल स्पीड है, वो स्पीड कितनी रखी है? 0, तो स्टार्टिंग
वेलोसिटी इज 0। फाइनल पूछ रहा है वो, और t क्या है हमारा 3 सेकंड, और ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v की वैल्यू निकालनी है, तो v वैल्यू भी लिख लो, u की वैल्यू पता है हमें 0, a क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू t कितना देगा 3 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड आफ्टर 3 सेकंड। वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड इज 30 मीटर पर सेकंड। तो एक ये एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर हमने ये रखा है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो, और जो कोई भी डाउट हो वो मैसेज करके मैं बताओ। मैसेज कहाँ करना है, इट्स व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर, जिसमें आपके जैसे ही काफी बच्चे होंगे, क्वालिफाइड बच्चे हैं, आपके साथी बच्चे हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट अब देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये कि डिस्टेंस क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है। डिस्टेंस का तो ऑलरेडी आपको मतलब पता है। स्टॉपिंग मतलब कि कोई बॉडी चल रही है, पार्टिकल इज मूविंग एंड इट स्टार्ट टू डिक्रीज इट्स स्पीड। दो से स्पीड को डिक्रीज करते 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 उसकी स्पीड 0 कब होगी, उस स्टार्ट होने से पहले, डिक्रीज स्टार्ट होने से पहले 0 तक का जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, जैसे एक कार मूव कर रही थी, सामने कुत्ता आ गया, ठीक है, उस कुत्ते को देखकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने के बाद वो कार कितना डिस्टेंस मूव करी, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, स्टॉपिंग डिस्टेंस की। अब इसे निकालते कैसे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि यहां पर कुछ वेलोसिटी रही होगी, इसे मानते हैं u, और स्टॉपिंग जब डिस्टेंस पूछना है तो ऑब्वियसली बात है, मान के चलेंगे v इक्वल टू 0। स्टॉपिंग मतलब स्टॉप, लास्ट में जाके वो कार जो स्टॉप हो गई है, स्टॉप मतलब उसकी स्पीड 0, तो v मानेंगे हम यहाँ पे u 0 और u मानेंगे जो दे रखा हो क्वेश्चन में। ठीक है, अब कितने टाइम में स्टॉप हुई है वो t दे रखा होगा, कुछ भी t दे रखा होगा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन से हम स्टॉपिंग को डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो, मतलब वो देख लेते हैं कैसे करते हैं इसे। तो हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। v 0 है, u तो v डालो, u की वैल्यू क्या है u प्लस a नहीं बता हमें, ये निकालना है इनटू t। तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस u अपॉन t। अब यहां पर माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस शब्द क्यों आ रहा है, ये माइनस जो आ रहा है ये, इसकी वजह क्या है, यानी कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। पहले यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी, यहाँ कम हो गई, दैट मींस एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्पीड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां से मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा, व्हेन वी अप्लाई सेकंड इक्वेशन, देन सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, u क्या है यहाँ पर गिवन है, u t गिवन है, प्लस हाफ at स्क्वायर, a u अपॉन t कैसा है, नेगेटिव में, इनटू टी स्क्वायर। तो टी से टी कट गया, तो ut माइनस
ut/2। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ut/2 इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसे निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम इसे थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, v² प्लस 2al। इससे भी निकाल सकते हैं। तो v हमारा क्या है, 0 है, u² प्लस 2 इंटू u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस u/t इंटू s। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। इसे लेके जाएंगे माइनस u² इज इक्वल टू 2u/t इंटू s। u से निकल गया तो 2ut/2 ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। प्लस होगा इनका, ये माइनस है, इधर जाके माइनस से प्लस हो जाए ये। तो दोनों ही देखो सेम आ रहे हैं ना, ut/2। इस तरीके से हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद मूव कर रही है, उसके बाद उसने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, वो डिस्टेंस हम इस तरीके की मोशन ऑफ इक्वेशन को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इस पर भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ्स, कि जब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई मोशन हो रहा है, उसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ बनाना, तो वो कैसा ग्राफ बनेगा। ऐसे कई सारे ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले टाटा बाय बाय। और आप इस ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए, ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके जितने भी डाउट है आप इसमें सेंड कीजिए, एक पिक चेक करके सेंड कीजिए, और ये सारे डाउट आपको विद इन 5 to 10 मिनट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। 1 2 3 come on